ابھی جو آپ کے سامنے کلام پاک میں سے تلاوت کی گئی ہے وہ ہے عشاء ربانی. عشاء ربانی کا مطلب کیا ہے؟ ادھر سے کوئی بتائے بہنوں سے. عشاء ربانی کا مطلب کیا ہے؟ نو نو ایک ہی بات جی. نو نقل بھی نہیں مارنی. آتا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں آتا تو کوئی بات نہیں. نو ادھر سے بھائی یونیورسٹی کو بتا دیں عشاء ربانی کا مطلب کیا ہے. آج ہم اس میں شامل ہونے والے ہیں. تو میری کوشش ہوتی ہے کلیسیا کرے کہ جو کرنے والے ہیں اس چیز کا آپ کو پتا ہو کہ کرن کی لگے ہیں. پتا نہ ہو ایسے شامل ہو جائے تو فائدہ نہیں ہے. جی رب کا اشارہ نو نو بھائیو خداوند کی موت کو یاد کرنا. ہاں لفظی اس کا ایک اس طرح سے ٹھیک ہے, لیکن اس کا لفظی مطلب وہ کچھ اور ہے. جواب آپ کا بھی درست ہے. اور کوئی بتائے؟ عشاء سر شام کو کہتے ہیں. شاباش. اور ربانی رب کو. آدھا جواب درست ہے, تھوڑا سا غلط ہو گیا. عشاء ربانی کا مطلب ہے شام کی روٹی. عشاء کی اذان ہوتی ہے شام کی. عشاء کا مطلب ہے شام کی روٹی. یہ شام کو عید فصح کے وقت, شام کے وقت یہ رسم روٹی کی ادا کی گئی. عشاء ربانی شام کی روٹی. اور لکھا ہے کہ جب وہ کھا رہے تو یسوع نے, یہ ذرا مجھے ایلیا تھوڑی ہیلپ کرے, روٹی دے. یہ کیا ہے؟ روٹی. نظر آ رہی ہے جی؟ لکھا ہے پھر جب وہ کھا رہے تھے تو یسوع نے روٹی لی اور پھر کیا لکھا ہے؟ برکت دے کر توڑی. آپ جب روٹی گھر میں بھی کھائیں تو اس کو پہلے برکت دیں. چاول ہے, روٹی ہے, کھانے کی جو بھی چیز ہے اس کو برکت دے کر توڑیں. برکت دے کر یہ سنا اس کو کھائے. میں بچے سنڈے اسکول کے سنے, جب آپ سلانٹی, چپس, لیز یا جو کچھ بھی عام روٹین میں کھانے کے علاوہ کھاتے ہیں اس کو بھی برکت دے کر کھائیں, تاکہ جو دنیا کی زمینی ایسی لانتیں ہیں اس سے وہ پاک ہو جائے. یسوع نے روٹی لی اور برکت دے کر توڑی. بہت سارے بہن بھائی روٹی کو برکت نہیں دیتے, دعا نہیں کرتے اور ایسے شروع ہو جاتے ہیں فٹافٹ. لکھا ہے اس نے ان کو, شاگردوں کو دے, اس نے روٹی لی اور برکت دے کر توڑی. اور اگلی بات, اور شاگردوں کو دے کر کہا کیا؟ لو کھاؤ, یہ میرا بدن ہے. یہ کیا ہے؟ بدن ہے. یہ دراصل روٹی کو یسوع مسیح نے اپنے بدن کے ساتھ تشبیہ دی ہے. اپنے بدن کے ساتھ تشبیہ دی ہے. روٹی کو کہا یہ میرا بدن ہے. وجہ کیا ہے؟ اور اس کو لے کر کہا اسے کھاؤ, اور اس کو یسوع مسیح نے بدن کو کیا کیا؟ توڑا. اب یہ تشبیہ اس بات کی تھی کہ یسوع مسیح کے بدن کو توڑا جانے والا تھا. یسوع مسیح کے بدن کو مارا کوٹا جانے والا تھا, اور یسوع مسیح نے پہلے سے کہا یہ میرا بدن ہے, اسے کھاؤ. یہ بڑا جو ہولی کمیونین ہے, جو عشاء ربانی کی میٹنگ ہوتی ہے, ہم ہر اتوار کے پہلے, ہر مہینے کے پہلے اتوار کو کرتے ہیں. یہ بڑی خاص ہوتی ہے. اس میں کلیسیا کو تیاری کے ساتھ آنا ہے. اس میں کلیسیا کو میں کہتا ہوں روزہ رکھ کر آنا چاہیے, اور عشاء ربانی کے ساتھ روزہ کھولے. ادھر آ راسدیاں گلاں نے, یہ گہریاں گلاں نے. یسوع نے, میں معذرت کے ساتھ, کئی چرچز میں روٹی نہیں توڑی جاتی. ادھر روٹی کا سسٹم ہی نہیں ہے. ادھر کیا ہے؟ وہ
वेफर बिस्किट, टिक्कियां, वो तोड़ी तोड़ी जाती नहीं है। यीशु मसीह ने वहां पर शेरवानी के वक्त फसह के मौके पर क्या लिया? टिक्कियां ली थी? जरा भाई बताए मुझे, जरा बोलिए। रोटी। बहनों बताओ, रोटी। चर्च के अंदर क्या तोड़नी चाहिए? रोटी। या वो टिक्कियां ने एक एक दे दो तो चलो भाई निकली जाओ। तो कई चर्च मैं देखो यीशु मसीह का खून दे विच शामिल ही नहीं करते लोगों को। वो आंदे ने टिक्की लो तो सैर पे हो जाओ। इशारवानी की जो हकीकत है उसको बयान नहीं किया जाता। और जो भी भाई ने जवाब दिया था कि मसीह की मौत को याद करना, दरअसल इसका रूहानी मतलब यही है, जब आप इशारवानी में शरीक होते हैं, उसके खून बदन में शरीक होते हैं, तो आप मसीह यीशु के उस कफारे को, उसके फिदियों को, उसकी मौत को याद करते हैं कि मेरे लिए उसका बदन तोड़ा गया। ये दरअसल इसका मतलब है। यीशु मसीह के बदन में जब आप शरीक होते हैं तो आपके बदन को कब कभी शुरू हो जानी चाहिए। मैं देखा कई भैन ने मेहंदी लाई होती है, 5-5 अंगूठियां पाइया होंदियां ने, खूब मेकअप करके ते अगे हाथ कर दिया ने कि लो जी दियो शेरवानी सानू। माजरत के साथ आपको खुद ही याद होना चाहिए कि त्योहार है, पहला चर्च जाना है, शेरवानी में शरीक होना, मैंने अपने आप को सादगी के साथ खुदा के जोर लेकर जाना है। यह मसीह का बदन है जिसको तोड़ा गया। और कहा रोटी ली और भरकर देकर तोड़ी और शागिर्दों को देकर कहा लो खाओ, ये मेरा बदन है। आप बदन खा रहे हैं, आप उस कफारे को याद करते हैं जो आपके गुनाहों के लिए, मेरे गुनाहों के लिए, पूरी कायनात के गुनाहों के लिए बदन तोड़ा गया। कैसे तोड़ा गया? कितने कोड़े पड़े यीशु को? 39 39 कोड़े यीशु मसीह की पीठ पर मारे गए, जोर से चमड़ी उधेड़ दी। यह तोड़ा दाना है बदन का। हाथों पांवों पर कील और सर पर कांटों का ताज, पसली में नेजा, मुंह पर थप्पड़, दाढ़ी को खींचा जाना, अजियत दिया जाना, ये सारी चीजें बदन को तोड़ने की अक्कासी करती हैं। रोटी का तोड़ना ये बड़ा खास है, बड़ा अहम है। इसको जरा चेक करने बैठिए। और इसके बाद एक और काम हुआ। फिर उसके बाद प्याला लेकर क्या किया जी? शुक्र किया और उनको देकर कहा तुम इस सब इसमें से पियो, ये पीने के लिए है। और ये अंगूर का शीरा यीशु मसीह के खून को जाहिर कर रहा है। इस वक्त ये जो इसके अंदर शीरा है अंगूर का, दरअसल मैं इसको ऐसे देख रहा हूं कि जैसे ये मेरे खुदावंद यीशु मसीह का खून है इसके अंदर, और ये खून मेरे गुनाहों के लिए शरीर के ऊपर बहाया गया, और मुझे यीशु के जख्म और यीशु मसीह का खून याद दिलाता है ये शीरा। और फिर मैं परेशान होता हूं। हर एक शख्स के अंदर, बच्चे के अंदर ये फीलिंग्स होनी चाहिए कि ये बज़ाहिर तो शीरा है, बट ये मेरे यीशु का खून है। ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट है ये यीशु मसीह का खून है। जब आप इसको गौर से इसको फील करेंगे, आपकी रूह कांप जाएगी। आपको वो सलीब का मंजर याद आ जाएगा कि मेरे गुनाहों के लिए मेरे मसीहा को सलीब पर इतना मारा गया, क्या क्या जुल्म सितम ढाए गए। बहरहाल ये इशारवानी जिसमें अभी मैं आप शरीक होने वाले हैं, ये बहुत खास है। इब्तदाई कलीसिया के लोग जब यीशु मसीह इस दुनिया से चले गए और शागिर्द शहीद हो गए, कलीसिया का वजूद बना, और जो इब्तदाई कलीसिया के ईमानदार और रास्तबाज थे वो इस
पाक रस्म को करते थे लेकिन छुप कर। अब सुनिए, उनकी तरफ में जो इब्तदाई स्टार्ट में मसीह लोग जो मसीह बने, मसीह हुए, ईमानदार जो थे, वो इस रस्म को छुप कर करते थे। कब्रिस्तानों में जा जाकर छुप छुप कर, गारों में छुप कर, सुरंगों में छुप कर वो ये रस्म अदा करते थे। और लोग पता उन्हें क्या कहते थे? ये आदमखोर हैं। आदमखोर का क्या मतलब है? इंसान को खाने वाले लोग, उनको कहते हैं आदमखोर। ये आदमियों को खाते हैं और वो उनको कहते हैं ये किसी आदमी का गोश्त खाते हैं और उसका खून पीते हैं, ये आदमखोर है। शायरबानी में शरीक होने वालों को यह कहा जाता था कि आदमखोर ने। आप जब हिस्ट्री की किताबें पढ़ें, चर्च हिस्ट्री पढ़ें, तो उसमें आपको ये सारी चीजें मिलेंगी, आपके नॉलेज में इजाफा होगा। और वो छुप कर करते थे। और एक और बात, ईमानदारों को शहीद कर दिया जाता था। जो गैर कौम के लोग थे, जब उन्हें पता लगता था कि ये शख्स क्रिश्चियन है, ये मसीह का पैरोकार है, ये मसीह का मानव है, तो उसको वो हलाक कर देते थे। एक निशान था मछली का, और ईमानदारों के बाजू पर या हाथ पर वो निशान बना होता था, वो निशान बनाते थे। और एक ईमानदार दूसरे ईमानदार को उस निशान से पहचानता था, जैसे आज स्लीप का निशान। अब जब किसी की गाड़ी में आप बाहर जाए रोड पर, तो गाड़ी में स्लीप का निशान होता है, फौरन पहचान जाते हैं, ये बंदे क्रिश्चियन और इसकी ये गाड़ी है। किसी के गले में आप क्रॉस देख ले, किसी घर पर आप क्रॉस देख ले, तो आप फौरन पता लग जाता है कि ये जी क्रिश्चियन है, ये किसी मसीह का घर है। उस वक्त सलीब का निशान, उस वक्त वो मछली के निशान से एक दूसरे को क्रूस्तुस, और वो उस मछली के निशान से एक दूसरे को पहचानते थे कि मैं मसीह का पैरोकार हूं। और वो फिर इस तरह इकट्ठे होते और इस पाक शाह में शरीक होते, और वो इवन के कुर्बान भी हो जाते थे, उनको मार भी दिया जाता था। इतनी तड़प होती थी उनके अंदर कि हमने शायरबानी में शरीक होना है। ये जो पाक सैक्रामेंट है होली कम्युनियन का, ये बड़ा अहम है और ये हमारी रूहानी जिंदगी के साथ इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है। ये फील करने से है, इसलिए इसको सिर्फ रोटी और शीरा ना समझे, ये बदन है यीशु का, ये शीरा मसीह का खून है। और लिखा है क्योंकि ये मेरा वो आहद का खून है। दरअसल इस खून से आहद बांधा गया है, नया आहद। पुराना अहदनामा कैसे बांधा गया? बैलों और बछड़ों के खून से, बछड़ों के खून से, बैलों के खून से। मूसा वो खून लेता और कौम बनी इस्राएल पर छिड़कता। क्रूस की किताब गालबन शायद 24वें बाब के अंदर है। तो वो फिर खुदा ने उनके साथ आहद बांधा, लेकिन नया आहद जो बांधा गया है वो बैलों बछड़ों के खून से नहीं, बल्कि मसीह के खून से बांधा गया है। और वो छिड़कने के लिए नहीं दिया गया, वो पीने के लिए दिया गया। और इसलिए ये बड़ा अहम है। लिखा है मैं तुमसे कहता हूं, हाँ लिखा है ये, क्योंकि ये मेरा वो आहद का खून है जो बहुतेरों के लिए, किसके लिए? बहुतेरों के लिए गुनाहों की माफी के वास्ते बहाया जाता है। ये किसके लिए बहाया गया सलीब पर खून? गुनाहों की माफी के लिए, बहुतेरों की गुनाहों की माफी के लिए ये खून बहाया गया है। अब जो इस खून पर कफारे पर ईमान रखता है, वो गुनाहों की माफी उससे मिलती है, गुनाह उसके खत्म हो जाते हैं, गुनाहों से वो छूट जाता है और खुदा उसको माफ कर देता है। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं, वो इस होली कम्युनियन के तमस्करे उड़ाते हैं। वो इसके बारे में बहुत सारे लोग, अपने भी और पराये भी, वो इसके बारे में बड़े गलत जुमले इस्तेमाल करते हैं। कोई लड़की थी, तो उसने आजमाने के लिए, ये वाक्य अक्सर खादम सुनाते हैं कि एक लड़की थी, तो उसने ये सोचा, गैर कौम की थी, उसने ये सोचा कि ये मसीह लोग कहते हैं कि ये खून है और ये गोश्त है, तो इसको हम खाते हैं। तो उसने आजमाने के लिए कहा कि आज मैं भी देखती हूँ कि वाकई ये खून और गोश्त है, कैसे झूठ बोलते हैं लोग। वो उसमें शरीक हो गई, और जब वो इसमें शरीक हुई जा रही थी तो उसका एक्सीडेंट हुआ रास्ते में। तो जब वो गिरी तो उसके मुंह से वही खून और गोश्त बाहर निकला, और उसने जब देखा तो वो हैरान हो गई कि ये क्या है। तो फिर उसको याद आया कि ये वो है जो मैंने अभी चर्च में लिया है।
और ये वाकई खून और गोश्त है मसीह का। और फिर उसने फौरन अपने गुनाह का इकरार किया, खुदा ने उसे जिंदगी दी, और वो फिर होली कम्युनियन के लिए अपने आप को तैयार कर दी थी। जब हम इसको आजमाते हैं कि भला चेक करें, जब आजमाएंगे तो आप खुदा तो अपनी कुदरत आप पर ज़ाहिर कर देगा, लेकिन आप नुकसान भी उठा सकते हैं। लिखा है खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। यीशु मसीह मत्ती 4 बाब के अंदर जब आप देखते हैं, शैतान ने बड़े हीलों के साथ, बहानों के साथ खुदावंद को आजमाया। ये भी कर तो ऐसा लिखा है तेरी बाबत, तो खुदावंद ने कलाम में से फरमाया कि ये भी लिखा है। सुबह आइए एक और जरा रेफरेंस देखें, पहले कुरिन्थियों उसका 11वां बाब और उसकी 23वीं आयत से देखते हैं जल्दी से। पहले कुरिन्थियों उसका 11वां बाब और उसकी 23वीं आयत मुकद्दसा से देखते हैं। लिखा है और शुक्र करके तोड़ी और कहा ये मेरा बदन है। पौलुस रसूल कुरिन्थस की कलीसिया को लिखते हैं, जैसे आज मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। पौलुस रसूल ने कहा कि शुक्र करके तोड़ी और कहा ये मेरा बदन है। खुदावंद के बयान को उसने बयान किया जो तुम्हारे लिए है। आगे लिखा है मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। यह हुक्म खुदावंदी है। पाकिशा में शरीक होना और इस पाक साक्रामेंट को अदा करना यह हुक्म खुदावंदी है। यह खुदावंद ताला का हुक्म है मसीहों के लिए, हर उस शख्स के लिए जिसका ईमान उसके कफारे पर है। और कहा मेरी यादगारी में, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। यही आजकल कुछ और ही चल रहा है। कोई रोटी दे देता है तो शीरा नहीं देता, कोई शीरा देता है तो रोटी नहीं देता। बहुत सारे मामलात हैं, लेकिन हमने क्या करना है? हमने इसको जो कलाम के मुताबिक है उसी तरह करना है। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा ये प्याला मेरे खून में नया, हालेलुया, नया हाथ बांध दिया यीशु मसीह ने। और वो क्या था? जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। अक्सर जब बीमारियां फैलती हैं कोरोना वायरस जैसी, तो चर्च में लीडरशिप पादरी साहब को बाउंड कर देती है, जी पियाओ ना, जिद करा तो करना भी पड़ता है। कुछ लोग डरते हैं कि मुझे इन्फेक्शन ना हो जाए, मुझे इसके जूठा पीने की वजह से कोई बीमारी मुझे भी ना लग जाए। तो अगर हमारे अंदर ये फीलिंग्स ऐसी होंगी तो फिर तो यीशु के लहू की कुदरत आपके अंदर काम ही नहीं कर रही। यीशु के लहू से क्या होता है? जरा बोले, यीशु के खून से क्या होता है? जब यीशु मसीह सलीब पर जान दे रहे थे तो खून जो पहाड़ियों पर से नीचे बहा बारिश में, तो नीचे कौन बैठे हुए थे? कोड़ी। और वो कोड़ी थे, उनको संसार किया हुआ था, और वो लहू जब उन पर पड़ा, बारिश पानी में मिक्स हुआ हुआ था, तो वो उस कोड़ से क्या पा गए? शिफा पा गए। तो हम इन्फेक्शन से डरते हैं, तो कहते हैं 5 साल डिप करा लें, कभी कभी मन नहीं पे आ जाती है। लेकिन खुदा का रूह मुझे यही सिखाता है, बीमारी जैसी भी हो, मिजाज कोई ऐसा शख्स इधर आ जाए कि उसको कोरोना वायरस है और वो इसमें से ले, जो उसके पीछे वाला है वो कहेगा वो इससे तो कोरोना है, इससे तो 20 क्लास में से लिया है, तो मैं अब इसको ये क्या वो पड़े, वो शायद ले ही ना। लेकिन मैं ये ईमान रखता हूं कि जब उसने शीरा नहीं बल्कि यीशु का खून पिया, उसका कोरोना वायरस खत्म हो चुका है, और जो पीछे वाले आने वाला है वो भी शिफा पा चुका है, उससे पीछे वाला भी। ये ईमान आपका मजबूत होना चाहिए। तो अगर ईमान ये होगा कि इस यीशु के खून में से भी हमें मुश्किल है, कोई डर है, तो फिर आप मसीह नहीं है, मसीह नहीं है। किसी बहन को किसी गैर कौम की औरत ने आजमाने की कोशिश की, उसने कहा कि आपके कलाम में लिखा है कि वो कोई जहरीली चीज पी लेंगे तो उसे कुछ जरा ना पहुंचेगा, तो आप मसीह खातून है, लड़की हैं, आप ये जहर पी ले, आपके लिए तो लिखा हुआ है। तो उसने बोला ओके मैं पी लेती हूँ, तो आपके लिए क्या लिखा हुआ है? आपका भी ईमान ऐसा ही कुछ है? कहा हाँ। तो उसने कहा चलो ऐसे करते हैं, दोनों पी लेते हैं, तो देख लेते हैं जिसका मालिक जिंदा और सच्चा होगा वो बचा लेगा। तो उसने कहा ले आओ जहर भाई, आधा आधा हम दोनों को दे दो, हम दोनों पी जाती हैं। वो मसीह ईमानदार लड़की थी, तो जब वो गैर कौम की लड़की ने देखा कि तो बिल्कुल रेडी हो गई है, तो उसने कहा नहीं मैं रेडी हूं, I'm रेडी, मैं पीऊंगी और आप देखोगी कि अगर मेरा खुदावंद जिंदा है तो मुझे बचा लेगा, अगर आपका खुदावंद जिंदा है तो वो आपको बचा लेगा, देख लेते हैं। तो उसने कहा नो नो नो, मैंने तो ऐसे आपको, मैं लेकिन उसने कहा मैं ऐसे नहीं कह रही, मैं सच कह रही हूं, आप आ जाओ पी लेते हैं।
वैसे तो लिखे आजमाना, लेकिन चले आप कहती है तो मैं पी ले, तो ये बिल्कुल ऐसे जैसे एलिया ने बाल देवता के नबियों को इकट्ठा कर लिया कि आज मालूम हो जाए कि इस्राएल में तू ही खुदा है। लिखा है इसकी बड़ी खास है, उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा यह प्याला मेरे खून में नया है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो। जो आपने जवाब दिया, आप क्या कर रहे हैं? जब आप इधर आते हैं तो आपके जहन में एक चीज होनी चाहिए, जब आप रोटी लेते हैं खून में शामिल होते हैं तो आपके जहन में सिर्फ एक ही बात होनी चाहिए कि खुदावंद आप मेरे गुनाहों के वास्ते सलीब पर मसलूब हुए हैं, मैं याद करती और करता हूं। जब आप लाइन में खड़े हो, आप करीब आए, आपके जहन में सिर्फ यही बात होनी चाहिए और कोई नहीं। आप देखिएगा खुदा आपको बेशुमार बरकतें देगा, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। लिखा है क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते हो और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो जब तक वो ना आए। कब तक करते रहना? जब तक उसकी दूसरी आमद, सेकंड कमिंग, आमद शानी ना हो जाए, हमें ये करते रहना है। और लिखा है इस वास्ते, अब ये बड़ी खास बात है, जरा तवज्जो से सुन, इस वास्ते जो कोई नामुनासिब तौर पर खुदावंद की रोटी खाए या उसके प्याले में से पिए, वो खुदावंद के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। इसकी सजा भी है, बरकत के साथ इसकी सजा भी है। जो नामुनासिब तौर पर, कई मैंने देखा शराब पी के लाइन च लगे होंगे, नशे से धुत होते हैं, उन्होंने होश ही कोई नहीं होती, कादम भी उंजदा ही होंदा, वो भी उन्होंने कहता है भाई ले। कई चर्च पी कर अंदर आ जाते हैं, कई हैं जो जिस्मानी दुनिया में है, खुदा से उनका कोई ताल्लुक नहीं, बस नाम के मसीही है, वो सिगरेट बाहर पी के अंदर चर्च से बढ़ जाते हैं। तो ये है नामुनासिब, या उसके बेहुरमती करके, या ईमान नहीं है और ये भी बस रस्मी किए जा रहे हैं, ये नामुनासिब, तो फिर सजा है। बहरहाल लिखा है इस वास्ते जो कोई नामुनासिब तौर पर खुदावंद की रोटी खाए या उसके प्याले में से पिए, वो खुदावंद के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। बस आदमी अपने आप को आजमा ले और इसी तरह उस रोटी में से खाए और उस प्याले में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदावंद के बदन को ना पहचाने, वो इस खाने पीने से सजा पाएगा। बरकत के साथ सजा भी है, तो बी केयरफुल। इसी सबब से तुम में बतेरे कमजोर और बीमार हैं, ये जरा सुन ले गौर से, इसी सबब से नामुनासिब तौर पर किया, जाना नहीं, पहचाना नहीं, समझ भी कोई नहीं और शरीक हो रहे हैं। तो उसने कहा इसी वास्ते तुम में बतेरे बीमार भी हैं और कमजोर भी हैं। तो क्या लिखा है? और बहुत से सो भी गए, खत्म हो गए, दुनिया से चले गए। अगर हम अपने आप को जांचते तो सजा ना पाते। लिखा है लेकिन खुदावंद हमको सजा देकर तरबियत करता है। यह बड़ी खास बात है। कुछ लोगों को जब आप डांटते हैं, उनको सिखाने, वो कहते हैं पार साहब ने मैं डांट दिया, हमें बहुत बुरा भला कह दिया जी, देखो जी। लेकिन खुदा क्या करता है? जिसे बेटा बना दो उसे क्या करता है? करता है, थोड़े मारता है, सिखाता है। और यहां पर लिखा वो सजा देकर तरबियत करता है। असल में वो आपकी तरबियत है, वो डांट नहीं है, वो आपकी दुरुस्तगी के लिए बातें हैं खुदा की तरफ से या खादम की तरफ से। लिखा है सजा देकर तरबियत कर, ताकि हम दुनिया के साथ मुजरिम ना ठहरे। ये हकीकतन और दाल असल इसके पीछे बात है कि हम दुनिया के साथ मुजरिम ना ठहरे। और लिखा है पास है मेरे भाइयों, जब तुम खाने के लिए जमा हो तो एक दूसरे की राह देखो। और लिखा है अगर कोई भूखा हो तो अपने घर में खा ले, ताकि तुम्हारा जमा होना सजा का बायस ना हो, और बाकी बातों को मैं आकर दुरुस्त कर दूंगा। खुदा करे कि दुरुस्त हो जाए। जहां जहां हमारी अभी दुरुस्तगी होने वाली है ना, खुदा करे कि वो आए और हमें दुरुस्त करे। बास का हम कहते हैं हमें टाइटल दे दे, स्टेज दे दे, हमने दुरुस्त नहीं होना जी, पर से भी दुरुस्त होने वाली बात ना करे। तो लिखा है कि बाकी मैं आकर तुम्हें दुरुस्त कर दूंगा, कलीसिया को वो कह रहा है। तो खुदा करे कि हमारी चर्च के शावर और दीगर तमाम लोग भी हम दुरुस्त होकर अपने खुदावंद की
خدمت میں، اس کے کام میں، اس کے کلام میں آگے بڑھے اور ہولی کے میں شاعر بانی کی حقیقت سے واقف ہو کر اسے برکتیں لے اور اس کے کفارے کو ہمیشہ یاد رکھے. خدا پر آپ کو برکت دے. آئیے اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں اور اپنے آپ کو تیار کریں. آئیے سب اپنے آپ کو تیار کریں.